Domestic versus international airlines. Hi guys, welcome back to my channel. It's my second video on YouTube, and today's topic is gonna be about the international and domestic airlines. Domestic airlines और international airlines में difference क्या होता है? There is only one major difference between these airlines. That is, domestic airlines आपको जिस कंट्री से टेक ऑफ कराती है उसी कंट्री में आपको लैंड कराती है. For example, you have booked your ticket from New Delhi and you are taking off from New Delhi and you have landed in Jaipur. That is the domestic flight. And that airline which is conducting that flight is the domestic airline at that moment, at that flight you are sitting in. Next, domestic flights in India, domestic airlines in India. Approximately all airlines are domestic in their respective countries. Even Emirates, Etihad and Qatar are also domestic at their level when they are traveling from Abu Dhabi to Dubai, Dubai to Sharjah, Sharjah to Dubai, Abu Dhabi, Dubai, anywhere in the UAE. That's why that airline is called the domestic airline. Next, India's domestic airline. We have Air India, Indigo, SpiceJet, Vistara, AirAsia, Go Air. They are the domestic airlines of India. And Indigo के बारे में बताता हूँ मैं आपको. That Indigo is traveling on an international level also. इंडिगो बहुत कंट्रीज में ट्रैवल करती है एज लाइक एयर इंडिया. इंडिगो इज द सेकंड नंबर लो कॉस्ट कैरियर इन द वर्ल्ड, रैंक्ड सेकंड इन द वर्ल्ड एज आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो. एंड अबाउट स्पाइसजेट इज नॉट दैट मच ऑफ रेपुटेड एयरलाइन एज मच एज इंडिगो एंड एयर इंडिया बिकॉज दैट इज स्लाइटली expensive than Indigo. That's why this is not so famous in India. And in India we have the peoples of kind that they have to reach their destination. They do not have any sense with the hospitality given by the crew. They do not have any method. They do not have any kind of idea that they should travel luxury. In India we have a kind of peoples over here. Next, Vistara Airways. Vistara Airways was established in 2015 in India. This airline is in the partnership with Tata Motors and the Singapore Airlines. Singapore Airlines is the 70% shareholder of Vistara Airlines. So Vistara Airways is mainly conducted by the Singapore Airways. That means Singapore Airways is ranked number 1 in the world by Skytrax as the luxurious airline. So that's why Vistara is also a luxurious airline on the basis of India. Different criteria with different domestic airlines. अब इंडिया में डोमेस्टिक एयरलाइंस में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है? योर एज शुड बी एटलीस्ट 18 years and more, and you should have a valid PAN card, that is permanent account number. You have a Aadhaar card, that is as a ID of your Indian nationality. You have a bank account, so that airline could send your pay to the account. And then only these things, and your BMI should be equal. In India these are the only requirements, and no airline, even that is Indian or that is a foreign airline, will say you to join any flying school or any institute to be a cabin crew or to be an air hostess. So please note it down. Please do not join any cabin crew institute. Please do not join any air hostess institute, because they will give you only the NSDC and Skill India certificate, as I have told you in the previous video. So please do not try to join any school or institute, because they will not polish you. They will charge you heavily, and they will only give you the Skill India branding that this student had prepared the NSDC, that program that held by government, I think. So that is not of use. None of its use there in aviation. वो आपसे नहीं मांगते कि आप किसी भी कैबिन क्रू इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो या फिर समथिंग एल्स ज्वाइन करो. एक एयरलाइन अगर फ्रेशर्स मांग रही है, बेशक इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं या फिर सिंपल बच्चे हैं, उनके लिए फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दे आर द फ्रेशर्स. गेटिंग इट? दैट इंस्टीट्यूट इज नॉट गिविंग यू द एक्सपीरियंस, दैट इज ओनली गिविंग यू द सर्टिफिकेट. अब इंटरनेशनल एयरलाइंस में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है टू बी अ कैबिन क्रू? देखिए, इंटरनेशनल एयरलाइंस 2 टाइप की वैकेंसीज निकालती है, एक्सपीरियंस्ड कैबिन क्रू और फ्रेशर एज अ कैबिन क्रू. अब जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं वो या तो डोमेस्टिक फ्लाइट्स में एक्सपीरियंस है उनके पास, या फिर उन्होंने कहीं होटल्स में काम किया, या फिर उन्होंने कस्टमर सर्विस में काम किया, या हॉस्पिटैलिटी का काम किया पहले. दे हैव द एक्सपीरियंस, सो दे कैन अप्लाई फॉर दैट वैकेंसी. अगर वो मांगते कि वी नीड द फ्रेशर एज अ कैबिन क्रू, then you have the qualification only up to HCS, that is your high school certification class 10+2. You have a valid PAN card and you have a valid Aadhaar card, and passport must, because you are going to the another country for your cabin crew trainings. Getting it? अब डिफरेंस क्या है इनमें?
डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के एयरक्राफ्ट में क्या डिफरेंस होता है। डोमेस्टिक एयरलाइंस जो होती हैं वो इंडिया टू इंडिया मतलब अपनी ही कंट्री में ट्रेवल करती है, जहां से टेक ऑफ किया जिस कंट्री से उसी कंट्री में लैंडिंग करती है। दे डू नॉट नीड अ हैवी एयरक्राफ्ट, दे डू नॉट नीड अ जंबो जेट कि वो इंडिया से अगर दिल्ली से उड़ रही है जयपुर के लिए तो उसको एयरबस A380 चाहिए। नो, दैट डो नॉट रिक्वायर। उसका बोइंग 737 में भी काम चल सकता है, बोइंग 727 में भी काम चल सकता है। दैट एयरलाइन कैन मैनेज बिकॉज डोमेस्टिक ट्रेवलर्स की काउंटिंग्स इतनी नहीं होती जितनी इंटरनेशनल ट्रेवलर्स की होती है। गेटिंग इट। अब टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट मैं बता रहा था आपको। अब जो इंडिया में एयरक्राफ्ट होते हैं अपनी एयरलाइंस के पास, दे आर द नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट की दो कंपनीज होती हैं, देर आर टू ब्रांड्स ऑफ एयरक्राफ्ट, वन इज एयरबस एंड सेकंड इज बोइंग। अब एयरबस कंपनी क्या होती है, एयरबस कंपनी गिव द बिगेस्ट एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड। अब एयरबस का एक जहाज है एयरबस A380, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द जंबो जेट, दैट इज द डबल डेकर प्लेन एंड दैट प्लेन हैज द मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर द पैसेंजर्स। डोमेस्टिक में क्या होता है, डोमेस्टिक एयरलाइंस इतने बड़े एयरक्राफ्ट हायर नहीं करती, वो हायर करती है बोइंग 737, बोइंग 787, बोइंग 757, 747 एंड एयरबस हायर करती है एयरबस A320, A330, A321 neo, A331 neo, A340, ओनली अप टू दैट। एयरबस A350 भी हायर करते हैं इंडिया में, विस्तारा एयरवेज करती है, इंडिगो करती है। अब एयर इंडिया ने बोइंग 777 किया, दैट इज द बिगेस्ट एयरक्राफ्ट ऑफ बोइंग फ्लीट। गेटिंग इट। सो दैट्स वाई अब हाइट और वेट डिफरेंट करते हैं हर एयरलाइन के अकॉर्डिंग। अब डोमेस्टिक में क्या होता है, नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट होते हैं तो उनको इतने लंबे लंबे कैबिन क्रू नहीं चाहिए, उनको चाहिए मिड रेंज के कैबिन क्रू जो आपका ऊपर लगेज उठा के रख सके। दे ओनली नीड दिस काइंड ऑफ कैबिन क्रू। बट इंटरनेशनल में क्या होता है, पैसेंजर्स हैव डू लॉट ऑफ लगेज, सो दैट्स वाई कैबिन क्रू उस लगेज को अच्छे से ऊपर रख सके बिकॉज दैट इज अ वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट। अगर इंडिया के एयरक्राफ्ट इतने हैं तो वो इतने हैं, अब उनका डायमीटर इंक्रीज हो रहा है तो उनकी हाइट भी इंक्रीज हो रही है। नॉट लाइक दैट अगर इंडिया के एयरक्राफ्ट इतने हैं तो इन अ सर्कल वे, दैट इज ओनली अप टू दिस लेवल। बट इफ डोमेस्टिक इंटरनेशनल आर एट दिस साइज, they have the diameter also, so that's why they need the tall cabin crew, and this is the reason that every international and domestic airline have the different age and different height criteria. एयरक्राफ्ट एंड इंटरनेशनल जो यूज होते हैं वो होता है एयरबस A380, एयरबस A320, एयरबस A350, बोइंग 777, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, बोइंग 737 एंड बोइंग 757-200ER। These are the major differences between the aircrafts of एवरी एयरलाइन। अब सबसे बड़ी बात आती है, बहुत सारे क्वेश्चंस आए मुझे कल की वीडियो के बाद, इंस्टाग्राम हैंडल पे बहुत सारे मैसेजेस आए ऑन द व्हाट्सएप हैंडल। मैं आपको बता दूं कि किसी भी इंटरनेशनल एयरलाइन को ज्वाइन करने के लिए आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। यू डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस टू ज्वाइन द इंटरनेशनल एयरलाइन। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, एवरी एयरलाइन गिव द टू डिफरेंट टाइप ऑफ वैकेंसीज फॉर फ्रेशर, वैकेंसीज फॉर इंटरनेशनल। देखिए अभी लॉकडाउन का टाइम है, कोविड पैंडेमिक चल रहा है अभी, दिस इज रियली वेरी वर्स्ट कंडीशन ऑफ एविएशन इंडस्ट्री। तो अभी तो देखिए कोई वैकेंसीज है नहीं किसी भी फील्ड में इन एनी एयरलाइन। डोमेस्टिकल में आपको बता रहा हूं, अगर आपको फिर भी कोई जॉब मिलती है फ्रॉम द करियर पेजेस ऑफ द रिस्पेक्टिव एयरलाइंस, देन अप्लाई फॉर दैट। सी द रिक्वायरमेंट, सी द एप्लीकेशन फॉर्म एंड जस्ट फिल द एप्लीकेशन फॉर्म एंड सेंड दैट टू द एयरलाइन ऑफिशियल वेबसाइट। अब डोमेस्टिक एयरलाइंस क्या होती हैं, क्या आपको क्या एक्सपीरियंस देती है। डोमेस्टिक एयरलाइंस आपको अगर फ्लाइंग कराती है वो आपको SCP लाइसेंस प्रोवाइड कराएगी, बिकॉज विदाउट SCP लाइसेंस नो कैबिन क्रू कैन फ्लाई इन अ फ्लाइट। SCP लाइसेंस आपके पास होगा, आपके पास फ्लाइंग आवर्स होंगे, आपके पास अपना रिकॉर्ड होगा, आपके पास अपनी अटेंडेंस रिकॉर्ड होगा दैट आई हैव फ्लाइड अ लॉट, नाउ आई एम एप्लीकेबल टू गेट इन इंटरनेशनल एयरवेज। अगर इंटरनेशनल किसी भी एयरलाइन का इंटरव्यू इंडिया में कंडक्ट करा रही है, वो मांग रहे एक्सपीरियंस कैबिन क्रू। अब बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे जिनके पास एक्सपीरियंस होगा, नॉट एज अ कैबिन क्रू, हॉस्पिटल के काउंटर स्टाफ हो सकता है, रिसेप्शन स्टाफ हो सकता है, कहीं भी होटल का रिसेप्शन स्टाफ हो सकता है, हाउसकीपिंग हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, वेटर स्टाफ हो सकता है, एनी काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी, कस्टमर सर्विस। और वहां पे आपको कॉल सेंटर वाले मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, बिकॉज दे हैव द कस्टमर इंटरेक्शन वे। आपको बहुत सारे मिलेंगे वीडियो KYC करने वाले जो आपको वीडियो टू वीडियो इंटरेक्ट करते हैं कस्टमर्स को, दे हैव द एक्सपीरियंस ऑफ दैट। बट प्रायोरिटी किसको मिलेगी, हु विल गेट द प्रायोरिटी? प्रायोरिटी उसको मिलेगी जिसने पहले डोमेस्टिक में काम किया है।
ये केस सिर्फ तभी होगा तब वो सिर्फ एक्सपीरियंस कैबिन क्रू मांगेंगे, नॉट व्हेन दे आर आस्किंग फॉर द फ्रेशर्स। अगर उन्होंने फ्रेशर मांगे हैं इंटरनेशनल एयरलाइंस ने, दैट डज मीन कि आपको सिर्फ 10+2 पास चाहिए है, वो आपको सिर्फ 10+2 पास ही चाहते हैं। दे डोंट वांट एनीथिंग मोर फ्रॉम यू। अगर आपके पास फिर भी है, दैट इज योर प्रायोरिटी। लिसन टू मी, जो एक्सपीरियंस्ड कैबिन क्रू होते हैं वो फ्रेशर में अप्लाई कर सकते हैं, दे कैन बी एज द सुपीरियर। अगर वो फ्रेशर में अप्लाई करते हैं तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर एक्सपीरियंस्ड कैबिन क्रू मांगे, नो फ्रेशर कैन अप्लाई बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस। गेटिंग इट? अगर वो फ्रेशर मांग रहे हैं और एक्सपीरियंस जा रहे हैं तो उनके लिए तो फायदा है। दैट इज द बिगेस्ट बेनिफिट फॉर एनी एयरलाइन। सो प्लीज ट्राई टू मेंटेन योर सेल्फ दैट वेल कि आपको कोई भी एयरलाइन हायर कर सके। अभी कोई एयरलाइन वैकेंसीज नहीं है, मैं वैकेंसीज पे भी वीडियो बनाऊंगा इस चैनल पे। सो जुड़े रहें इस चैनल के साथ। अगर आपको एविएशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, प्लीज कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कीजिए, मेरे ईमेल पे मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम हैंडल पे ट्वीट कीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। Share this video if you like this video. Thank you so much.